न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी वो लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे किस तरीके से ये 3 दिन पहले ये माहौल बनाया गया, किस तरीके से उकसाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से इलाके को पूरी तरह, और प्रशासन की क्या क्या जो कमियां रही हैं वो उनके बारे में भी कहा गया। Now, the situation continues to remain tense in Haryana as several incidents of fresh violence were reported from several parts of Gurugram. This comes after communal clashes broke out during a procession taken out by the VHP and Bajrang Dal in Nuh on Monday. Now, the clashes led to the death of at least 5 people, including 2 home guards. 12 police personnel were also injured in the violence, and the violence spread from Nuh to Gurugram within hours. Now, a mob on Tuesday set fire to a restaurant and vandalized adjoining shops in Gurugram's Badshahpur. Gurugram District Administration has put a ban on the sale of loose fuel to anyone. Meanwhile, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar said that the clashes appear to be a part of a big conspiracy. VHP has called for a Bharat Bandh to protest new violence, and a Mahapanchayat will be held in Manesar at 11 a.m. today. We are in Sona at Ambedkar Chowk, one of the hotspots of the violence that unfolded yesterday in Haryana, and you can see behind me how the shops were gutted, vandalized, and offices were looted. This is what the locals have alleged. Police have said that they have ensured heavy deployment in the area. However, when we spoke to locals, they said that the mob started charging these shops and started violence around 4 p.m. yesterday, which continued till late night. Shops were burnt and offices were vandalized. Some of the carts of local shopkeepers were also turned turtle, looted, and then set afire. This is what the locals have alleged, and the shopkeepers we have spoken to had to testify. You can see fire tenders are deployed and police vehicles are also present in the vicinity now, as the internet in this area stands suspended. Police are saying that they have the situation under control and additional deployment is being ensured. Just a short distance from here in Nuh, the violence continues as curfew has been imposed. However, police are maintaining that Gurgaon, including Sona area, is currently under control. कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे। देखिए, मुख्य तौर पे तो नूह का जो हमारा कस्बा है वो, और एक नल्हड़ जो मंदिर है वो मेन हमारा जो एरिया था, जो इफेक्टेड था।
हमारे साइबर थाने पे अटैक हुआ है, बड़गली चौक पर काफ़ी नुकसान हुआ है, अकबर चौक के लेफ्ट राइट, अकबर चौक के 3-4 पॉइंट थे प्लस नल्हड़ मंदिर, ये हमारा मेनली एरिया थे जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आगजनी और पथराव और गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। इस वक्त टोटल जो MLR हमें रिसीव हुई थी 47 हुई है और 3 इसमें MLR मतलब इंजर्ड जो होता है वो 47 है, 3 कैजुअलिटी है, 2 हमारे होमगार्ड के जवान शहीद हुए हैं और 1 सिविलियन की इसमें डेथ हो गई है। हमने सबसे अपील की है और हम सोशल मीडिया मॉनिटर भी कर रहे हैं कि जो भी CCTV फुटेज या वीडियो या कोई भी क्लिप जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद कर सकती है, और यहाँ मैं यह भी अपील करूंगी आपके माध्यम से कि अगर किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन दंगाइयों को पहचानने में या इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकती है तो आप जरूर हमसे शेयर करें। अभी तक हमने 16 FIR दर्ज करी है, आगे भी FIR उसमें दर्ज की जा रही हैं और जिसमें भी जो कंप्लेंट आ रही है उसके बेसिस पे, जहां तक मोनू मानेसर का सवाल है, अभी एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस के आधार पे उनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं देखी गई है। फिर भी जो अगर मीडिया इंटेलिजेंस और ये सब कह रही हैं तो उनके बेसिस पे हम सारा घटनाक्रम का CCTV फुटेज एनालाइज कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता का भी विश्लेषण किया जा रहा है। नहीं, ऐसा इमीडिएट फ्लेयर अप था, कोई प्री प्लान जैसी अभी आ नहीं रही है और उसके एंगल से भी जो बातें आ रही हैं कि प्री प्लान था, उसके एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कमेटी से भी हमने आग्रह किया है कि वो यहाँ के एरिया के मौजूद लोग हैं तो शांति बनाए रखने में सहयोग करें और जो भी एलिमेंट्स इस टाइप के अफवाह फैलाने वाले हैं उनको लोकल लोग पे समझाएं, नहीं तो उनको कानून के दायरे में लगे जेल करवाई जाएगी। Well, quite a grim situation in Haryana right now, and the investigation continues to figure out why and what exactly went on. But for now, we're going to slip into